Hello students, now I will discuss the lecture number 7, which is structural isomerism in organic compounds. So, firstly we will discuss the isomerism. So, isomerism is the phenomena where the compound have same molecular formula but the different in structure, and it will be divided into two parts. One is the structural isomerism and the second is the stereoisomerism. In structural isomerism, the compound have same molecular formula but different in the structure, and in the stereoisomerism the compound have same molecular formula, same structural formula but different in the spatial arrangement of the carbon atom. So, these are the different type of isomerism. Now, the isomerism is divided in like that, structural isomerism and stereo. Structural isomerism further divided into chain, positional, functional, metamerism, tautomerism, ring chain. Stereoisomerism is divided into two parts, geometrical and optical. फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म क्या होता है. इट इज़ रिलेटेड टू सेम द फिनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म वेयर द molecular formula of the compound will be same but the structure will be different. In the stereoisomerism, both the molecular formula and the structure formula will be same, but the spatial arrangement of the carbon atom will be different. मतलब movement of the carbon atom will be different. Molecular formula भी same होगा, structure formula भी same होगा. जो कार्बन एटम हैं, जो भी एटम्स प्रेजेंट है, उनका जो मूवमेंट होगा इट विल बी, स्पेशल अरेंजमेंट विल बी डिफरेंट. ओके, फिर स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म डिवाइड होते हैं 6 पार्ट में: चेन, पोजिशनल, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, रिंग चेन. स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज डिवाइडेड इनटू ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल. Optical isomerism is related to the optical activity of the organic compound, and it will be divided into two form. One is D dextroform and the second is L leoform. और अगर अलग बात करें तो R form, S form. ठीक है. Geometrical isomerism is divided in two parts, cis and trans. ये जो आइसोमेर मतलब इसमें जो बनते हैं वो डिफरेंट होते हैं. जैसे ऑप्टिकल में डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी अकॉर्डिंग टू द रोटेशन, उसमें फिर हम आर फॉर्म, एस फॉर्म डिसाइड करते हैं. ज्योमेट्रिकल में सिस फॉर्म, ट्रांसफॉर्म और ई जेड फॉर्म भी आता है. E Z. Now, the structural isomer. The structural isomers are those isomers in which the atoms are completely arranged in a different order with the same molecular formulas. There are the molecules having the same kind of molecular formula but different connectivity depending upon the order they are put together. Structural isomers are the molecule with the same molecular formula but their atoms have different arrangement or bonds. For example, butane and isobutane have the same number of carbon and hydrogen atom, but it will be the molecular formula are the same but the structure will be different. जैसे कि ब्यूटेन, द molecular formula of the butane is C4H10, and when we will talk about the normal butane, so it will be the structure CH3, CH2, CH2, CH3. So, in there 4 carbon and 10 hydrogen is present, and this is normal butane. If we will talk about the isobutane, so the structure will be
So in there the carbon number atom, the hydrogen atom will be same, but this is the isoform. In the structural isomerism, the atoms are arranged in the completely different order. This is easier to see with specific examples. What follows looks at some of the ways that structural isomerism can arise. The names of the various form of structural isomerism probably don't matter all that much, but you must be aware of the different possibilities when you come to draw isomer. तो क्या होता है कि हमें कुछ मॉलिक्यूल देख के, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के हम नहीं बता सकते कि इनमें क्या डिफरेंस आ सकता है, लेकिन जब हम उसके आइसोमर्स ड्रॉ करते हैं देन वी विल सी द डिफरेंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रक्चर. और जो भी आपके आइसोमर्स बनना स्टार्ट होते हैं वो कार्बन नंबर 4 और उसके आगे ही स्टार्ट होते हैं, मतलब ब्यूटेन से ही स्टार्ट होते हैं. पेंटेन प्रोपेन, मीथेन, इथेन, these compound will give not isomerism. Now the structural isomerism, फिर से एक बार, it will be divided into 6 type: chain isomerism, positional isomerism, functional isomerism, metamerism, tautomerism, ring chain isomerism. Now we will discuss the chain isomerism. Chain isomerism is related to the chain isomer where the organic compound structure is different in the chain. These isomers arise because the possibility of branching in the carbon chain. मतलब जब कार्बन चेन, कार्बन जो भी आपका स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसके कार्बन चेन में डिफरेंस होता है. जैसे कि अभी हमने ब्यूटेन में देखा था, एक स्ट्रेट चेन था और एक ब्रांच चेन था, तो ये डिफरेंस है. फिर ब्रांच चेन में भी डिफरेंट टाइप आ जाते हैं, डिफरेंट तरीके से ब्रांचिंग होती है. तो जो चेन में डिफरेंस आता है इन द ब्रांचिंग, क्योंकि स्ट्रेट में तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं, ब्रांचिंग में ही डिफरेंस आएगा. सो it is related to the chain isomerism. For example, there are 2 isomers of the butane. Butane का तो बता ही दिया है. Butane has one structure is a straight chain and second structure is a iso, means branch chain. In one of them the carbon atoms lie a straight chain, whereas in the other the chain is branched, like that. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये नॉर्मल ब्यूटेन है, दिस इज आइसोब्यूटेन. इसके अलावा अगर हम पेंटेन की बात करें तो पेंटेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C5H12. ओके, अब हम पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं. एक तो इसका स्ट्रेट चेन में स्ट्रक्चर आएगा और दूसरा इसका ब्रांच चेन में स्ट्रक्चर आएगा. तो सबसे पहले इसका हम स्ट्रेट चेन में स्ट्रक्चर बनाते हैं. So this is the structure of the normal pentane. Okay, there are 5 carbons, 3 to 5 to 7 to 9, 3, 12, 10 hydrogen. This is the structure of normal pentane and the straight chain. Next, second structure. So this is the structure of branch chain of the pentane. और ये कौन सा है, ये आपका आइसो है, आइसो पेंटेन है. 1 2 3 4 5. ओके,
अब इसमें भी दो ब्रांचिंग हो सकती है, ये तो एक सिंगल ब्रांचिंग हुई है। अगर हम इसकी दोबारा बात करते हैं बनाने की, दिस इज आइसोपेंटेन। नाउ द थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन, यहाँ बना देते हैं। ये तो ये थर्ड स्ट्रक्चर है। तो हम यहाँ क्या देखेंगे कि तीनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब पहला तो आपका स्ट्रेट चेन में ही है तो नॉर्मल पेंटेन है, दूसरा ब्रांच में है बट एक ही ब्रांचिंग होने की वजह से दिस इज आइसो। और यहाँ अगर हम बात करें तो दोनों तरफ ब्रांचिंग है, सो दिस इज नियोपेंटेन। सो हम कह सकते हैं कि इन द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन देयर आर 3 आइसोमर्स विल बी पॉसिबल। ओके, सो इस तरह से चेन आइसोमेरिज्म। और डिफरेंस कहाँ आ रहा है? चेन में ही आ रहा है। पहले तो एक स्ट्रेट चेन है, दूसरी ब्रांच चेन है, तीसरी ब्रांच चेन है, बट ब्रांचिंग में डिफरेंस है। So this is the chain isomerism which is different in the chain, longest chain. Now the position isomerism. Position isomerism is related to the difference in the position of the substituent. जो substituent present होते हैं in the organic compound, उनकी पोजीशन में जब डिफरेंस की हम बात करते हैं, सो इट इज़ रिलेटेड टू द पोजीशन आइसोमेरिज्म। इन पोजीशन आइसोमेरिज्म द बेसिक कार्बन स्केलेटन रिमेन्स अनचेंज्ड बट इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स आर मूव्ड अराउंड ऑन दैट स्केलेटन। पोजिशनल आइसोमेरिज्म इन C5H12, अगर C5H12 में बात करें तो वो आइसो नियो वाला ही फॉर्म आएगा और उसी में पोजीशन में डिफरेंस है। जैसे कि अभी मैंने लास्ट उस एग्जांपल में बताया था कि एक में आपका एक ही मिथाइल ग्रुप एक सिंगल पोजीशन पे लगा था, इसी को अगर हम फर्स्ट पोजीशन पे लगा देते तो ये आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाता। या जैसे एक सिंगल में लगा था, एक दोनों डबल में लगे थे। सो एक बार मैं फिर से इसका एग्जांपल दे देती हूँ। एक आइसोफॉर्म एंड एक नियोफॉर्म। तो ये अगर आइसोफॉर्म में बनाते हैं तो ये पोजीशन में एक ही पोजीशन में एल्काइल ग्रुप आ रहा है, मिथाइल ग्रुप आएगा। और अगर हम इसको नियो में बनाते हैं तो दोनों पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे। सो दिस इज द पोजीशन आइसोमेरिज्म। उसके अलावा इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट था एल्काइल ग्रुप, मतलब CH3 की वजह से डिफरेंस आ रहा है, मिथाइल ग्रुप की वजह से। नेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल देयर आर two structural isomer with the molecular formula C3H7Br। अब हम इसके पोजीशन आइसोमर बनाते हैं। ये मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या था? C3H7Br। तो यहाँ मॉलिकुलर फॉर्मूला लिख लेते हैं C3H7Br। इसका मतलब है 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमो। ओके, नाउ इन द फर्स्ट स्ट्रक्चर it will be right in the straight chain and it will be 1 bromo propane, 1 2 3 according to the IUPAC naming. Now in the second structure the bromo group is present in the second position. So the difference in the position of the bromo means substituent के पोजीशन की में डिफरेंस आ रहा है. दिस इज फर्स्ट पोजीशन एंड इन देयर इट विल बी सेकेंड पोजीशन. ओके, सो it is the position isomerism in there, the difference in the position of the substituent in the organic compound. अगर हम वही पेंटेन की बात करते हैं C5H12 तो इसमें वही था, इसके दो स्ट्रक्चर फॉर्म
एक तो स्ट्रेट चेन का फॉर्म होता है, दूसरा एक तो ये स्ट्रक्चर है, सॉरी, और दूसरा तो एक नॉर्मल फॉर्म में है और एक आपका इसमें हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दिस इज पेंटेन या नॉर्मल पेंटेन एंड दिस इज 2-methyl पेंटेन। तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है जिसमें किसमें डिफरेंस आता है, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन में। Now the functional group isomerism. In the functional group isomerism, the difference in the functional group, इसमें क्या होता है, पोजीशन जो पोजीशन आइसोमेरिज्म था, पोजीशन आइसोमेरिज्म में कभी कभी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में भी डिफरेंस होता है सब्स्टिट्यूएंट के अलावा। और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होता है। आपका हेट्रो एटम, क्योंकि हेट्रो एटम से मिलकर ही फंक्शनल ग्रुप बनते हैं, हेट्रो एटम सेम होंगे जितने प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन उनके फंक्शंस में डिफरेंस होगा और उसकी वजह से फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाते हैं। सो इन दिस वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म द आइसोमर्स कंटेन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप दैट इज दे बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज ऑफ द कंपाउंड, डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज। लाइक example of the molecular formula C3H6O, C3H6O could be either propanol, an aldehyde, or sometimes it will be propanone, a ketone। मतलब दोनों में पूरा मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, C3H6O। तो समटाइम्स इट विल बी एल्डिहाइड एंड समटाइम्स इट विल बी कीटोन। सबसे पहले हम इसमें फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं, O है और C डबल बॉन्ड O ही होगा क्योंकि कार्बन से अटैच है, तो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो कार्बोनिल ग्रुप में दो टाइप का होता है, एक होता है एल्डिहाइड और कीटोन। तो समटाइम्स जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर होगा इट विल बी एल्डिहाइड एंड समटाइम्स इट विल बी कीटोन। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। देयर आर 3 कार्बन इज प्रेजेंट एंड 6 hydrogen is present and 1 oxygen is present. So it will be write in this type CH3 CH2 CHO and this is propanol, and in second way we will write CH3 CO CH3। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ पूरा ग्रुप ही चेंज हो गया। दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप अल और दिस इज कीटो ग्रुप ओन, ठीक है। तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया है। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2OH। दिस इज इथाइल अल्कोहल। इन देयर 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक इसका पॉसिबल आइसोमर ये हो गया और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हो गया OH और इसका नेमिंग क्या हो गया 1,2 इथेनॉल, या फिर इसका जो जनरल नेम हो गया वो हो गया इथाइल अल्कोहल। नाउ इसका सेकेंड आइसोमेरिज्म अगर हम बनाते हैं तो ये होगा CH3O CH3। दिस इज ईथर, ये अल्कोहल है और ये कौन सा ग्रुप है ROR। दिस इज ईथर। तो ये क्या हो गया,
डाईमिथाइल ईथर बोल सकते हैं इसको, इसका कॉमन नेम, या फिर मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, अगर कॉमन नेम देंगे तो इट विल बी डाईमिथाइल ईथर, और अगर हम इसका IUPAC नेमिंग देंगे तो इट इज़ मिथॉक्सी मीथेन। ओके, सो हम यहाँ यही देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप चेंज होने की वजह से पूरा कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन और उसकी अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से पूरा कंपाउंड ही चेंज हो गया है। कंपाउंड का फंक्शंस चेंज हो गए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ है तो फंक्शंस भी चेंज हो जाएंगे। अब फंक्शन चेंज होंगे तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगी, क्योंकि जैसे अब एल्डिहाइड और कीटोन है, वैसे तो दोनों कार्बोनिल ग्रुप में आते हैं, लेकिन एल्डिहाइड की अपनी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे बेंजल्डिहाइड, प्रोपेल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ये सब अलग होते हैं। प्रोपेनोन मतलब कीटोन कैटेगरी आ गई इसमें, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, ज़्यादातर कीटोन जो होते हैं वो एज अ सॉल्वेंट की तरह यूज़ किए जाते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। ऐसे ही एल्कोहल से, एल्कोहल भी ज़्यादातर सॉल्वेंट्स की तरह ही यूज़ किए जाते हैं, तो इथेनॉल की प्रॉपर्टी कुछ और होगी। अगर हम ईथर की बात करें तो ईथर की प्रॉपर्टी, ईथर भी वैसे ज़्यादातर सॉल्वेंट की तरह यूज़ कर जाते हैं, लेकिन अदर भी इनका यूज़ होता है, तो डिफरेंस आ जाता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में। नाउ द मेटामेरिज्म। मेटामर्स आर द isomers having the same molecular formula but different alkyl groups on two sides of functional group. This phenomena is isomerism is called metamerism. मेटामेरिज्म में क्या होता है? मेटामेरिज्म में जो हेट्रोएटम प्रेजेंट होता है बिटवीन द कार्बन एटम, वो तो एक साइड में प्रेजेंट होता है, बट जो एल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं, मीन्स कार्बन एटम जो लगे होते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है, और वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कंपाउंड का स्ट्रक्चर और नेम चेंज हो जाता है, और उसकी वजह से उसकी फिजिकल और प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती हैं। लाइक दैट वी कैन सी द एग्जाम्पल। दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है, ईथर ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कार्बन नंबर के डिस्ट्रीब्यूशन पे। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3 CH2O CH2 CH3, ये आपका है इथॉक्सी ईथर, इथॉक्सी ईथेन, ये ईथर ग्रुप है, ROR, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था। अब क्या है? फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, ये एक स्ट्रक्चर है, इसका दूसरा स्ट्रक्चर ये है, जो इस तरह से हम लिखेंगे CH3 CH2 CH2O CH3। ठीक, अब यहाँ हम देखेंगे, हाँ, अब यहाँ हम देखेंगे 4 कार्बन प्रेजेंट हैं, 10 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 1 ऑक्सीजन, मीन्स जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो क्या है? C4H10O, 4 कार्बन, 1 2 3 4, 3 2 5 2 7 3 10 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन और फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, ईथर ही है, ईथर है, लेकिन जो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है डिफरेंट हेट्रोएटम के आसपास, वो उनकी पोजीशन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। इधर हम देख रहे हैं 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, और अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें तो 3 एल्काइल ग्रुप इधर है और 1 एल्काइल ग्रुप इधर है। अब इसका अगर हम नाम देखेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि हम शॉर्ट वाला जो एल्काइल चेन होती है उसको हम प्रोफिक्स में ले लेते हैं, तो मिथॉक्सी प्रोपेन। सो इस तरह से इनकी नेमिंग चेंज हो गई। अब नेमिंग चेंज हो गई तो कंपाउंड का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई। नेक्स्ट इज टॉटोमेरिज्म।
टॉटोमेरिज्म क्या होता है? टॉटोमर्स आर आइसोमेरिज्म्स ऑफ अ कंपाउंड विच डिफर ओनली इन द पोजीशन ऑफ द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये एक तरह की फंक्शनल आइसोमेरिज्म ही है, फंक्शनल ग्रुप। इसमें भी फंक्शनल ग्रुप ही चेंज होता है, लेकिन इसमें और क्या चेंज है? इसमें जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पोजीशंस में डिफरेंस आ जाता है इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द कार्बन स्केलेटन ऑफ द कंपाउंड इज अनचेंज्ड। अ रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स सिंपल प्रोटॉन ट्रांसफर in an intramolecular fashion is called the tautomerism. So ये है एक टाइप की स्पेशल आइसोमेरिज्म, स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है, और इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में डिफरेंस आता है, बेसिकली प्रोटॉन की, और फिर उसकी वजह से फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है। कंपाउंड एक ही होगा और एक ही कंपाउंड के अंदर 2 मिक्सचर फॉर्म होंगे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के। जैसे कि यहाँ हम देखेंगे ये एक ही कंपाउंड है और इसमें एक फॉर्म इनॉल की है, एक फॉर्म कीटो की है। तो इसमें जो हम डिफरेंस देख रहे हैं वो ज़्यादा किस में आ रहा है? सिर्फ प्रोटॉन में। यहाँ पर एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, एक O के साथ लगा है, मतलब एक प्रोटॉन डिफरेंट पोजीशन पे है। एक ये है H, क्योंकि प्रोटॉन को हम किससे डिनोट करते हैं? H+ से करते हैं। तो एक प्रोटॉन ऑक्सीजन के साथ है, एक कार्बन के साथ है। अगर हम कीटो में देखेंगे तो इसकी जो पोजीशन है, जो ये वाला प्रोटॉन है ये यहाँ ट्रांसफ़र हो गया है और ये यहाँ 2 प्रोटॉन आ गए हैं और ऑक्सीजन सिर्फ सिंगल रह गया है। तो जब O के साथ H मतलब होता है तो वो क्या होता है? अल्कोहल फॉर्म होता है, इनॉल फॉर्म होता है। और जब O सिंगल होता है कार्बन के साथ तो वो क्या होता है? कीटो फॉर्म होता है। इसी तरह से यहाँ देखते हैं लैक्टम फॉर्म और लैक्टिन फॉर्म। तो एक ही कंपाउंड के अंदर 2 ग्रुप फॉर्म हो रहे हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप, इनॉल भी और कीटो भी, सिर्फ किसकी वजह से? डिफरेंशिएट इन द पोजीशन ऑफ द प्रोटॉन। नेक्स्ट इज द लैक्टम एंड लैक्टिन. In there we can see the hydrogen is attached with the nitrogen, and in second structure hydrogen will be transferred with the oxygen atom. तो यहाँ भी प्रोटॉन में ही डिफरेंस आ रहा है, तो इसकी वजह से ये ग्रुप ही चेंज हो गई। ये कीटो ग्रुप हो गया और ये एल्कोहलिक। और यहाँ देखिए तो दिस इज सेकेंडरी अमीन एंड देयर इज टर्शरी अमीन। इसी तरह से अमाइड फॉर्म में NHCO NH2, यहाँ पे इमिडिक एसिड फॉर्म, इसमें भी प्रोटॉन का ट्रांसफ़र है। अमाइन और इमीन फॉर्म में यहाँ पे प्रोटॉन नाइट्रोजन के साथ है, यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, दो प्रोटॉन सिंगल नाइट्रोजन के साथ हो गए। तो दिस इज अमाइन फॉर्म, दिस इज इमीन फॉर्म, मतलब एक ही कंपाउंड के अंदर 2 टॉटोमेरिक फॉर्म। तो ये किसकी वजह से हुआ? डिफरेंट पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम या फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट इज द रिंग चेन आइसोमेरिज्म. रिंग चेन आइसोमेरिज्म basically involved for the alicyclic compound that give both open chain compound and the closed chain compound. So the ring chain isomerism is the process which involve the transformation of a molecule from an open chain structure into a ring structure. Such isomerization is classified into valence isomerism and additive isomerism. So like that we can see that propene and cyclopropane. अब प्रोपीन की बात करें तो प्रोपीन का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे हम साइक्लिक स्ट्रक्चर, दिस इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर। अगर हम प्रोपीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो ये होगा, मतलब साइक्लिक फॉर्म में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब साइक्लोप्रोपेन का ही तो साइक्लिक फॉर्म है ही है। अगर हम साइक्लोप्रोपेन का ओपन चेन लिखेंगे तो वो लिखा जाएगा ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म में, रिंग्स और ओपन चेन कंपाउंड में। Like that, these are the example of the ring chain isomerism. Thank you.